Assalamu alaikum students, hope you are doing okay. In the last lecture we talked about brand, and we talked about its history, how it came into existence, and the word brand came into existence, and things that are associated and why consumers buy a brand. Today we are going to talk about customer-based brand equity. Customer-based brand equity, as I expressed or talked about it in the last lecture, is like in short the goodwill of the brand, or it is the perceived value of the brand which is in the minds of the customers. So let's take this discussion further and see how it is being built and what are the ingredients to this customer-based brand equity, because we know that there is no hard and fast rule as to how to measure this customer-based brand equity. Now, customer-based brand equity, or CBBE, is the differential effect that brand knowledge has on consumers' response to the marketing of that brand. Now, this is what Keller said in 1993. The differential effect of a brand in the as per the response of a consumer is something like everybody has a different experience with the brand. So when they have a different experience with the brand, and the knowledge that they have about that brand is also different, because people do not have all the messages or the communications that have been put forward by the brand available to each consumer. So differential effect is what the differences in consumer response. The brand knowledge is the result of customers' knowledge about the brand, and response is to marketing is the choice of the brand, recall of copy points from an ad, response of sales promotion, evaluation of the proposed brand extension. Now, consumer response would be different to different brands, because every consumer has different needs. Though we tend to think that all consumers are the same. No, consumers are not the same. For if you look at a packaged milk market, आपको पता चलेगा कि there are different packages or sizes available in the packaging for the milk market. आपको 250 grams में भी मिल जाएगा, हाफ लीटर में भी मिल जाएगा, एंड लीटर वाला पैक भी मिल जाएगा. एंड why this is because कि लोगों की जो यूजेज है वो डिफरेंट है. फॉर पीपल हु हैव अ फैमिली वुड probably opt for a 1 liter pack or 1.5 liter pack, whereas somebody who is single or living alone would not consume much milk and would be satisfied with having our 250 ml pouch. Consumers जो हैं वो आपके लिए differently act करते हैं, और वो जो है उनका reaction different होता है to whatever your marketing communication is. तो लोग जो हैं वो कुछ ब्रांड्स को फॉलो कर रहे होते हैं, और वो जो है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि उनको मालूम हो कि वो ब्रांड कहाँ से आया है, कौन लोग हैं उसके पीछे, व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर, उनका मिशन क्या है, विजन क्या है, हाउ इट वुड हेल्प देयर लाइफस्टाइल, व्हाट बेनिफिट वुड दैट ब्रांड गिव टू द कंज्यूमर्स. ठीक है. और जो है लोग जो है फिर वो डिफरेंटली रिएक्ट कर रहे होते हैं जो आपके एड्स आते हैं. ठीक है ना. आप देखें एड्स जो हैं आपके टीवी पे भी आ रहे हैं, रेडियो पे भी आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी आ रहे हैं. गर्ज ये कि एवरी डे जो एक आम कंज्यूमर है उसको हम बम्बार्ड कर देते हैं अपने मैसेजेस से, और फिर जो है उसका रिएक्शन डिफरेंट होता है. हमारा जो बेसिक प्रेमिस है इस सारे मैसेजेस को देने का वो यही है कि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ब्रांड ख़रीदें और जो लॉयल्टी है वो इंक्रीज़ हो. तो इसलिए हम उनको नॉलेज देते हैं, बट लाइक सारी नॉलेज एक ही दफ़ा में नहीं दे दी जाती, उसको हम ब्रेक करते हैं. वो हम डिफरेंट फेजेस में उस ब्रांड के लिए वो मैसेजेस रिलीज़ करते हैं ताकि जो है लोगों को उसको कंज्यूम करने में आसानी हो.
इसी तरह जब सेल्स प्रमोशंस होती हैं जहाँ पे हमको कई दफ़ा कह देते हैं कि जी बाय 2 गेट 1 फ्री, और बाय अ लार्ज पैक एंड गेट अ स्मॉल पैक फ्री, इस तरह की जब आ जाते हैं, या सेल 40% ऑफ, 30% ऑफ, 50% ऑफ, तो लोग डिफरेंटली रिएक्ट कर रहे होते हैं। इवन वो देयर आर कंज्यूमर्स जो कि सारा साल अपने फेवरेट ब्रांड्स के लिए वेट करते हैं कि कब वो सेल लगेगी और कब वो जाके वो प्रोडक्ट या वो ब्रांड को खरीदेंगे। एंड देयर आर टाइम्स कि उस सेल्स के लिए बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई होती हैं, ठीक है। और इसी तरह लोग उसको एवेल्युएट कर रहे होते हैं उन ब्रांड्स को और उनकी डिफरेंट एक्सटेंशंस को। अब ब्रांड इक्विटी क्या है? ब्रांड इक्विटी जो है एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द कंज्यूमर्स, ठीक है। और वो जो है वो आपको बता रही होती है कि जितनी इन्वेस्टमेंट आपने ब्रांड में पिछले दिनों की हुई थी या पिछले सालों में की थी, वो जो है वो किस तरफ जा रही है, ठीक है। और वही जो है आपके फ्यूचर का जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसको डिटर्मिन करती है कि आपके कंज्यूमर्स जो हैं वो किस तरह रिएक्ट किया, जो पीछे आपने उनको कुछ अरसा पहले या कुछ साल पहले जो आपने उनको जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी उसके हवाले से। सो लाइक जो उसका जो पास्ट है, जो माजी है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट हुई हुई है वो मैटर करती है बहुत ज़्यादा, और वो जो है वो आगे का कोर्स ऑफ एक्शन को डिटर्मिन भी कर रही होती है। याद रहे कि हमने जो है एक लॉयल कस्टमर की तरफ जाना है, हमने उस लॉयल कस्टमर को बनाना है। सो वो जो ब्रांड है ना, उसमें जो लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जो कस्टमर्स के साथ कांटेक्ट में आते हैं, जिनको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, उनका उस ब्रांड को समझना बहुत सख्त ज़रूरी है। अगर वो ब्रांड के एसेंस को नहीं समझते तो वो कस्टमर को कभी कन्विंस नहीं कर सकते। इसकी सबसे बड़ी मिसाल सर्विस इंडस्ट्री है, जिसमें आपके बैंक्स हैं, आपके हॉस्पिटल्स हैं, आपके होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, टूरिज्म रिजॉर्ट्स हैं। तो जो सर्विस इंडस्ट्री है उसमें जो है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि सर्विस जो है इंटैंजिबल है, लोगों को नज़र नहीं आ रही कि क्या है, ठीक है। जब तक आप उस सर्विस को ऑर्डर नहीं करते, यू डू नॉट नो। बेसिक फंक्शंस जो हैं वो तो सेम होते हैं, लेकिन उसको किस तरह डिलीवर किया जाता है वो मैटर करता है। तो अब हम जो है ब्रांड को मजबूत करने के लिए, ब्रांड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम जो काम करते हैं वो ये कि वी प्रोवाइड ब्रांड नॉलेज टू द कस्टमर, ठीक है। और वो नॉलेज जो है इज द की टू बीइंग एबल टू बिल्ड ब्रांड इक्विटी। अब साइकोलॉजी में एक टेस्ट होता है जिसको हम नोड्स की बात करते हैं। उसमें इस तरह है कि जैसे हर चीज़ जो है वो एक सेल की तरह है, और वो जो है वो सेल उसकी डिफरेंट नोड्स हैं जो आपकी मेमोरी के अंदर वो फैली हुई हैं, ठीक है। अब वो जो नोड है वो उसमें अगर हम एक ब्रांड रख दें तो उसके साथ जो जितनी चीज़ें एसोसिएट होंगी वो उसकी मेमोरी में चल रही होंगी। जैसा कि अब हम बात कर रहे थे कि जो ब्रांड नॉलेज है इज़ लाइक अ ब्रांड नोड जो कि आपकी मेमोरी में एम्बेड हुई हुई है, ठीक है। ये साइकोलॉजी में एक टेस्ट किया जाता है जिसमें जो है देखा जाता है कि लोग जो हैं किस तरीके से चीज़ों को एसोसिएट करते हैं या याद रखते हैं, ठीक। सो वो जो नोड है वो आपको बताती है कि आप जो है किसी भी चीज़ को किस तरीके से याद रखे हुए हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसके साथ एसोसिएट की हुई हैं। सो अगर हम बात कर रहे हैं इस नोड की, तो अगर आप देखिए ये नोड है और हम इस
कोक की बात कर लेते हैं। तो कोक जो है वो आपको बता रहा है फैमिली के बारे में, कोक आपको बता रहा है फ्रेंड्स के बारे में, कोक आपको फन, मतलब फूड, पिकनिक। ओके, सो लाइक आप जो है किस किस तरीके से जो है कोका कोला को याद रख रहे हैं। सो लाइक इट कैन बी डन फॉर नाइकी, जिसमें इट कुड बी टाइगर वुड्स, एथलेटिक परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको वो नोड्स से रिलेट करने में, मकसद डिपेंडिंग कि आपकी कितनी नॉलेज है उस ब्रांड के बारे में, इट वुड रियली गिव यू एन एज इन अंडरस्टैंडिंग द ब्रांड। इस नॉलेज का मकसद आपको जो है अवेयरनेस क्रिएट करना है और एक इमेज बनाना है। मोस्टली जो अवेयरनेस का जो पार्ट है वो ब्रांड्स यूज़ कर रहे होते हैं जो कि मार्केट में नए होते हैं, वेयर एज जो इमेज वाला जो पार्ट है वो लोग यूज़ कर रहे होते हैं जिनका मार्केट में कुछ अरसा गुजर चुका होता है, विच आर अ लिटिल ओल्डर एंड दे वांट टू establish themselves or position themselves in the minds of the consumer in some way. अब जो अवेयरनेस है उसके दो पार्ट्स हैं, एक रिकग्निशन और एक रिकॉल। ठीक है, और इमेज जो है वो हम चाहते हैं कि स्ट्रांग हो, फेवरेबल हो और यूनिक हो। ठीक है, अब रिकग्निशन और रिकॉल की जब हम बात करते हैं तो रिकग्निशन में क्या है कि आपने उसको जहां भी हो उसको आप रिकग्नाइज कर लें, उसके कलर से, उसकी पैकेजिंग से, उसके लोगो से, उसके डिज़ाइन से। ठीक है, और जो रिकॉल है वो ये कि जब भी आपको ज़रूरत हो उस कैटेगरी में, कोई भी नीड अराइज करे तो आप उस ब्रांड को रिकॉल कर सकें। तो एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं कंसिडरेशन सेट। कंसिडरेशन सेट में क्या है कि आप चाहते हैं कि आपका जो ब्रांड है, जब आपने को परचेज करनी है या जो कंज्यूमर ने जो परचेज करनी है, जो उसकी इंटेंशन है टू फुलफिल हिज और हर नीड बाय परचेजिंग द ब्रांड, तो 1, 2, 3 जो है उन 3 में से जो है आपका ब्रांड हो, क्योंकि कोई ना कोई ब्रांड जो है वो तो होगा। जो ब्रांड रिकग्निशन है या ब्रांड रिकॉल है, हम ये चाहते हैं एज मार्केटर्स के जो हमारा जो ब्रांड है वो कंज्यूमर के कंसिडरेशन सेट में हो। कंसिडरेशन सेट से हमारी मुराद ये है कि जब भी उसको वो नीड अराइज हो उस कैटेगरी में कोई चीज़ लेने की, तो हमारा जो ब्रांड है वो उसकी टॉप प्रायोरिटी हो,
या एज ऑल्टरनेट नंबर 1 या ऑल्टरनेट नंबर 2 हो, मतलब 1 2 3 इसके अलावा हम नहीं चाहते कि हमारा ब्रांड नीचे गिरे, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। सो उसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे अब आपका दिल कोई कोला ड्रिंक पीने को कर रहा है, तो एज कोक और पेप्सी आपकी कंसिडरेशन ये होगी कि अब जब रिकग्निशन में या रिकॉल में, मतलब फॉरन रिकॉल में उस वक्त जो है पेप्सी, कोक और फैंटा या ड्यू, मतलब ये तीन जो हैं ये टॉप ऑफ द माइंड आ जाए। क्योंकि कोला में जो है दूसरा, अगर हम अपनी लोकल मार्केट देखें तो वी हैव लाइक गोरमे एंड सूफी, बट देन अगेन वो स्मॉल साइजेस में अवेलेबल नहीं है अभी जो है, वो दे आर ओनली अवेलेबल इन 1 लीटर 1.5 लीटर पेट बॉटल्स। सो अमृत कोला वॉज देयर, बट लाइक वो फेड आउट होता जा रहा है। तो पेप्सी एंड कोक आर फाइटिंग फॉर द टॉप स्लॉट, कि जब भी कोला पीने को दिल करे या प्यास लग रही हो बेवरेजेस में जो है अगर आप जा रहे हैं, तो मकसद सबसे पहले जो कंसिडरेशन सेट है उसमें क्या हो कि आपके पास पेप्सी या कोक, आइदर ऑफ द टू। सो लाइक इफ़ यू आर अ पेप्सी ड्रिंकर, तो आप सबसे पहले पेप्सी को ढूंढेंगे कि पेप्सी मिल जाए, और अगर पेप्सी नहीं मिलती तो नियर टू दैट टेस्ट इज कोक, although the tastes are different, but then again it's also a cola, तो you would take that alternate which is available। पहले आप विसिनिटी में ढूंढेंगे कि आपको पेप्सी मिल जाए, और अगर आपको पेप्सी नहीं मिल रही है तो आप फिर कोक ले लेंगे, और अगर आपके पास कोक भी वहां पे नहीं है तो फिर you would opt for another drink। now up that third one could be a fizzy drink, or it could be a juice, or it could be water। क्योंकि ये जो अवेयरनेस है और फिर उस वक्त जो है आपकी जो नीड है वो किस तरह फुलफिल होती है, वो जो है वो मद्देनजर रखने वाली बात है। यहाँ पे मैं ये एक और बात बता दूं कि मकसद जब आदमी की नीड की हम बात कर रहे हैं, जैसे अब हमने ये बात की कोक और पेप्सी की, तो यहाँ पे एक और चीज़ भी आप याद रखें कि जब आप बेवरेजेस में आ जाते हैं, क्योंकि ये कंसिडरेशन जो है सेट में ये बेवरेज की है, तो अब आपने कुछ पीना है, तो पीने में आप वो देखेंगे कि जी आपने कोई गर्म चीज़ पीनी है या ठंडी चीज़ पीनी है, डिपेंडिंग कि आपका क्या मूड है या वेदर बाहर का कैसा है। या सो वो जो है उसमें अगर आपने गर्म चीज़ पीनी है तो वो चाय और कॉफ़ी आएगी, और फिर चाय और कॉफ़ी में फिर आपकी अपनी प्रेफरेंसेस हैं कि आप क्या लेंगे। अदरवाइज अगर आप जो है कोल्ड, यू वांट समथिंग कोल्ड, तो इट कुड बी वाटर, इट कुड बी जूस, और इट कुड बी फिजी ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक जैसे कहते हैं, ठीक। और फिर जो है अंडर डिफरेंट कंडीशंस हम ये स्टडी कर रहे होते हैं कि जो हमारा कंज्यूमर है वो हमसे कितना लॉयल है, और हमारा जो रिकॉल है वो किस तरह होती है। तो लाइक जो एसोसिएशंस हमने वो नोट से बना के मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि जी फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड पिकनिक एंड फूड एंड स्टफ फॉर कोका कोला और नाइकी, टाइगर वुड्स, परफॉर्मेंस, एथलेटिक्स, टेनिस, गोल्फ, क्रिकेट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस नोड से एसोसिएट हैं। सो आप किस मूड में बैठे हुए हैं और किस एनवायरनमेंट में हैं, तो आपकी रिकॉल कैसी है, और फिर आप वो क्या वो परचेज करते हैं या नहीं करते हैं, दैट इज़ अ क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आंसर्ड। सो जो इमेज है वो हमेशा हमारी कोशिश ये होती है कि वो स्ट्रांग हो, फेवरेबल हो और यूनिक हो, वो मैच हम ना करें, वो किसी और के साथ मैच ना हो रही हो, किसी कंपटीशन के साथ मैच ना हो रही हो। वाई? बिकॉज वी वॉन्ट आवर ब्रांड टू स्टैंड अलोन। अगर लास्ट डिस्कशन आपको याद हो तो हमने बात की थी सैमसंग की और नोकिया की। अब सैमसंग और नोकिया मोबाइल फोन्स में they are one of the biggest players in the market, but having said that,
जो ब्रांड इमेज एप्पल का है इन दैट मोबाइल मार्केट, वो सैमसंग का या नोकिया का नहीं है। जो गो के मार्केट शेयर जो है एप्पल का कम होगा, लेकिन जो उसका इमेज है वो बड़ा स्ट्रांग है, बड़ा फेवरेबल है लोगों के लिए, वो यूज़र फ्रेंडली है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू हैव और ओन एन एप्पल, बट नॉट एवरीबडी कैन ओन अ एप्पल बिकॉज इट इज़ प्राइस्ड एट अ क्वाइट अ हाई प्राइस। जो उसकी कीमत है वो ज़्यादा है, हर आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो यहाँ पाकिस्तान में नहीं चलती हैं, क्योंकि वो दूसरी मार्केट के लिए बना है। सो हम जो है पाकिस्तान में नोकिया को और सैमसंग को ज़्यादा यूज़ करते हैं, एंड देन वी हैव आवर ओन ब्रांड विच इज़ कॉल्ड क्यू मोबाइल, and it is coming up as a big contender for the number 1 post in Pakistan। और वो जो ब्रांड बिल्डिंग है वो किस तरह कर रहे हैं कि वो सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स के साथ कर रहे हैं, और दे कुडंट केयर लेस। वो जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो अक्रॉस द बॉर्डर से भी आ रहे हैं उसको इंडोर्स करने के लिए। तो लोग जो हैं वो एवरी डे दे आर कन्वर्टिंग टू दिस Q Mobile because it's cheaper and it's giving you the same features as what are being offered in Samsung and other Android phones। अब क्योंकि यहाँ पे ये भी हुआ, कल मैंने आपसे मायोपिक होने की भी बात की थी, मार्केट इज मायोपिक हो जाते हैं, तो इमेज इतना स्ट्रांग था और इतना जो था मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा था नोकिया का, तो वो थोड़े से मायोपिक हो गए। और उन्होंने जो है, क्योंकि एप्पल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर आ रहा था मार्केट में, और उन्होंने उसको इतना जिसे कहते हैं थोड़ा उसको लाइटली लिया, और उन्होंने जो है एंड्रॉयड को अडॉप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से the largest being the largest sellers of the mobile phone, वो जो टॉप स्लॉट था उनके पास वो उनसे छीन लिया गया और नोकिया जो है वो नीचे आ गया। अब जब नोकिया जो है ने टॉप स्लॉट छोड़ा तो सैमसंग ने उसे टेक ओवर कर लिया। रीज़न बीइंग कि सैमसंग ने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, क्योंकि वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी कि जो कि एप्पल को काउंटर कर सकती थी। तो उन्होंने जो है एंड्रॉयड बेस्ड फ़ोन्स बनाने शुरू कर दिए और मार्केट में लेके आ गए, एंड दे हैड एक्सपेंसिव वर्जन्स एज वेल एज चीप वर्जन्स, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको अडॉप्ट कर सकें। तो अब जो है जब आप एंड्रॉयड की बात करते हैं तो एकदम सैमसंग का फ़ोन जो है लोग रिकग्नाइज भी करते हैं, रिकॉल भी कर लेते हैं ड्यू टू इट्स क्वालिटी एंड उसकी यूनिक फीचर्स विच आर अवेलेबल, जो कि बाद में बहुत सारे और फोन्स ने भी अडॉप्ट किए, वो जो है लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, एंड पीपल फील प्राउड। नाउ सैमसंग इज ऑल्सो competing with Nokia now and Apple at the same time। नोकिया ने जो है अपना बेस सिम्बियन से माइक्रोसॉफ्ट बेस चले गए, और वो जो है लोगों को इतना अट्रैक्ट नहीं कर सके। दे वर लेट इन अडॉप्टिंग दिस टेक्नोलॉजी, सो दे लॉस्ट देयर टॉप स्लॉट। तो वो क्योंकि वो मायोपिक हो गए थे कि हमें तो कोई हिला नहीं सकता, हम जो है मार्केट में बहुत स्ट्रांग जा रहे हैं, हम लीडर्स हैं और ये इनोवेशन में, और हमारी जो लॉयल्टी बेस है वो ज़्यादा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो हर आप देखें 6 महीने के बाद चेंज हो रही है, नई से नई चीज़ें आ रही हैं। सो वो जो बीइंग मायोपिक, दे हैड टू पे अ वेरी हेफ्टी प्राइस फॉर इट। अब अवेयरनेस के एडवांटेजेस जो हैं वो क्या हो सकते हैं कि जी, एक लर्निंग,
एडवांटेज है कि लोगों को पता चलता है कि वो ब्रांड है क्या चीज़, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं, उसके जो इनोवेटर्स हैं या जो जिन्होंने वो इन्वेंट किया है उनके बारे में, ठीक है, दोज हु हैड मेड दैट ब्रांड, लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनके लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहते हैं, उनको ये जानना चाहते हैं कि वो जो है वो क्या करते क्या हैं इन देयर लीजर टाइम, हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम यू नो एट वर्क, सो पीपल वांट टू नो। और जितना ज़्यादा वो उस लर्न करते हैं उतने ही ज़्यादा वो उस ब्रांड के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। दूसरी तरफ कंसिडरेशन एडवांटेज है, और क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो उसके बारे में जानते हैं इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके कंसिडरेशन सेट में परमानेंट प्लेस लेता जाता है। अब अगर आप कंसिडरेशन सेट में देखें तो जो इतने हमारे बुजुर्ग हैं वो जब खाना पक रहा होता है या तो वो कुकिंग ऑयल की बात हो रही होती है तो वो डालडा की बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना। जब उनको टूथपेस्ट चाहिए होती है तो वो मैकलीन्स की या फॉरेंस की बात कर रहे होते हैं। सिमिलरली जब डिटर्जेंट चाहिए होता है टू वॉश क्लोथ्स तो सर्फ की बात हो रही होती है। हालांकि क्योंकि सर्फ एक ब्रांड है बट लोग जो हैं वो इतना जेनेरिक ब्रांड नेम हो गया कि वो जो है धुलाई का पाउडर या जो है डिटर्जेंट नहीं बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि यार सर्फ की थैली देना, ठीक है। सो वो जो है इसी तरह जो भी 4x4 नजर आती है वो हम उसको जीप कह देते हैं, जेनेरिक नेम है, हालांकि जीप जो है वो इटसेल्फ एक ब्रांड है। फिर दूसरा, जितने ज़्यादा ये लर्निंग हो जाती है, जितनी ज़्यादा नॉलेज आ जाती है, उससे क्या होता है कि आपकी जो चॉइस होती है उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि आप जो है उस जो सेटिस्फैक्शन लेवल है आपका वो उसी ब्रांड से ही जाके पूरा होता है। अदरवाइज जो सेटिस्फैक्शन है वो नहीं होती अगर आप कोई और भी चीज़ कंज्यूम करते हैं। उसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर आपको जो है मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाना है या बर्गर खाना है और वो जो है मैकडॉनल्ड्स आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है कंसिडरेशन सेट में, तो आप कोई और जगह से बर्गर खा लेंगे, यू वुड नॉट बी सेटिस्फाइड अनटिल अनलेस आप जो है वो मैकडॉनल्ड्स से जाके वो बर्गर ना ले लें। या अगर आपको जो है कोक पीना है और वो कोक आपको नहीं मिली और आपको पेप्सी पीनी पड़ गई है, तो वो जो सेटिस्फैक्शन है वो नहीं होगी आपको। फॉर द टाइम बीइंग आपकी नीड ज़रूर पूरी हो जाएगी, लेकिन जो एक मेंटल सेटिस्फैक्शन है वो नहीं रहेगी। यहां पे एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि लाइक जो ब्लाइंड टेस्ट्स होते हैं ना, ब्लाइंड टेस्ट में अगर आपको नहीं बताया जाए कि कौन सा ब्रांड कौन सा है, तो जो कंज्यूमर्स हैं वो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। कुछ खाने पीने की चीज़ अगर आप साइड बाय साइड रख दें और उनको नहीं बताएं कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है या कौन सा ब्रांड है वो, तो इट इज़ वेरी रेयर कि somebody would give you 10 different reasons कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है। बट when you tell them कि which is which और which brand is which, तो वो जो है फौरन because they know the brand, they would be able to differentiate the two things in in a very professional way। वो आपके लिए जो है अपने जिस ब्रांड को वो पसंद करते हैं उसके बारे में इतनी अच्छाइयाँ बयान कर देंगे कि वो दूसरी चीज़ जो है वो ऐसे लगेगा कि जैसे इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा हम दें अपने ब्रांड के बारे में, ताकि जो है लोग उसको लें, एंजॉय करें और बार बार जो है इस्तेमाल करें। और इसी सिलसिले में एक चीज़ जिसको हम कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़्यादा काम आता है, बिकॉज व्हेन पीपल आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड बाय यूजिंग अ ब्रांड, दे वुड ऑल्सो टॉक अबाउट दैट ब्रांड इन अ पॉजिटिव वे।
और वो बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, क्योंकि आप हर आदमी का एक जो है सर्कल होता है जिसमें वो कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो वो अपने सर्कल में जाके जब बात करेंगे तो वो लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे कि वो एक दफ़ा उनकी पसंद का ब्रांड इस्तेमाल करके देखें। इसी तरह अगर आप देखें विद इन फ्रेंड्स, आप लोग जो हैं एक दूसरे को लेके जाते हैं, जब ट्रीट दे रहे होते हैं तो यू हैव योर फेवरेट प्लेसेस। इसी तरह जब आप लोग जो हैं अपने फ्रेंड्स को कहीं लेके जाते हैं, मतलब कहीं ट्रीट देने लेके जाते हैं, तो आप सबकी फेवरेट प्लेसेस होती हैं एंड यू लाइक सर्टन थिंग्स ओवर देयर। मतलब उस रेस्टोरेंट में आपको पता होता है कि क्या चीज़ मिलेगी और उसका क्या टेस्ट होगा एंड व्हाई यू वुड एंजॉय गोइंग देयर। इट कुड बी द एम्बियंस, इट कुड बी द सर्विस एंड फूड ऑल्सो, बिकॉज दैट इज़ द मेन रीज़न यू आर देयर। तो आप जो है वहाँ जाते हैं और आप जो है लोगों को लेके जाते हैं, और फिर इन रिटर्न वो लोग जो हैं अपने जो, अगर उनको वो जगह पसंद आ जाती है तो वो अपने साथ जो सर्कल होता है वो उसको वहाँ पे लेके मूव करते हैं। सो वो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। सो अब हम क्या करते हैं, मकसद वी इंक्रीज द फेमिलियरिटी, ठीक है ना, ऑफ द ब्रांड। हम उसमें एक्सपोजर को इंक्रीज कर देते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा उस ब्रांड के बारे में आपको बता रहे होते हैं, या हम ब्रांड का मैसेज आपको दे रहे होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो है लोग जो हैं उसको रिकग्नाइज करें। अगर आप आजकल देखें टीवी के ऊपर तो OLX के जो हैं बहुत ज़्यादा एड्स आ रहे हैं। सो लाइक सेलिंग थिंग्स वर नॉट दैट ईजी, सो दे हैव मेड इट ईजियर। और अब यह है कि उनके स्मार्टफोन की एप्लीकेशन भी आ गई है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर दे रहे हैं ताकि मोर एंड मोर पीपल यूज़ देयर एप्लीकेशन। तो जब भी कोई चीज़ बेचने की बारी आती है या कोई भी होता है तो आप वो कहते हैं यार OLX कर दो। सो वाई OLX कर दो? आपने कभी खुद इस्तेमाल करके देखा है OLX? My observation is that from the people that I have known, not even 50% of the people have experienced OLX. बट क्योंकि एक्सपोजर इतना ज़्यादा है, रिकग्निशन इतनी ज़्यादा हो गई है उस ब्रांड की, कि लोग जो हैं वो कहते हैं कि यार OLX कर दो। तो वो जो OLX करने का मतलब ये है कि किसी तरीके से आपके पास कुछ नॉलेज है, तो आप ये कह रहे हैं ना, दो यू माइट हैव नॉट यूज्ड इट, बट देन अगेन उस एक्सपोजर ने आपको हैज मेड यू से दिस कि जी OLX कर दो। ठीक है, तो फिर उससे क्या हुआ कि आपने जो है एक्सपोजर ज्यादा कर दिया। अब क्या है कि जब आपको जब भी जरूरत पड़ेगी तो वो ब्रांड रिकॉल कर लेंगे आप, ठीक है ना, इट वुड बी ऑन टॉप ऑफ योर माइंड। तो वो टॉप ऑफ द माइंड होने के नाते से क्या होगा कि जब भी आपको जरूरत पड़ी आपने कहा मैं जो है बस ये अभी कर लेता हूं जी, और वो आप उस ब्रांड को यूज करेंगे और अपनी नीड को फुलफिल कर लेंगे। तो ये जो चीज़ है ये हमारी ब्रांड अवेयरनेस से इन्हेंस हो जाती है। अब एसोसिएशन की बात हम जब कर रहे हैं या पॉजिटिव ब्रांड इमेज की हम बात करें, तो क्या हुआ कि हम ये नहीं सोच रहे कि जो सोर्स ऑफ ब्रांड है वो क्या है, ठीक है, हम उस पर बात नहीं कर रहे। गो के एट टाइम्स इट डज मैटर, ये हम आगे जाके एक चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि हमें सोर्स भी जो है वो मैटर करती है, एंड वो के जो है टेक्नोलॉजी के टर्म्स में ज़्यादा करती है। जैसे जब हम कोई चीज़ ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ मशीनरी और टेक्निकलिटी, तो वी ऑलवेज ऑप्ट के जो है वो जर्मन होनी चाहिए। जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे होते हैं तो वो हमें चाहिए होता है कि जी वो जापानीज़ होनी चाहिए। तो वो जो ओरिजिन है इट डज़ मैटर इन
थिंग्स. सो वो जो है वो इस वक्त बात नहीं है. मकसद अगर हम एक जनरल अभी इस वक्त ब्रांड की बात कर रहे हैं तो मकसद जो वो जो सोर्स है, वी डू नॉट वांट टू नो व्हाट द सोर्स इज एट टाइम. वी जस्ट वांट दैट आवर नीड शुड बी फुलफिल्ड विद लेस रिस्क इन्वॉल्व, लेस टाइम इन्वॉल्व. ठीक है. इट शुड गिव अस सेटिस्फैक्शन एंड पीस ऑफ माइंड. ठीक. सो वी नीड इट टू बी ए फेवरेबल, स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक. अब what we want to do is कि we need to understand कि हम इस information को जो हमारे पास है उसको हम किस तरह मैनेज करेंगे या हम उसको किस तरह लेके चलेंगे और अपनी जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है उसको किस तरह इवॉल्व करेंगे या उसको डेवलप करेंगे सो दैट इट गिव्स अ पॉजिटिव इमेज ऑफ दैट ब्रांड. यहाँ पे मैं आपको एक बात मज़े की बताता हूँ कि जो कैडबरी डेयरी मिल्क है उसमें अमिताभ बच्चन को वो किस तरह लेके आए. अब मैंने आपको बताया कि जी हम व्हाट वी वांट इज़ के ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको हम मैनेज करें और उसको हम इस तरीके से यूज़ करें कि उस कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी में कि इट शुड गिव यू अ पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग फेवरेबल इमेज. इंडिया में किसी ने जो है वो डेयरी मिल्क इस्तेमाल की और उस डेयरी मिल्क के अंदर एक कॉकरोच निकल आया और उस कॉकरोच को निकलने के बाद जो है वो डेयरी मिल्क का जो प्लांट था उसको बंद कर दिया गया. डेयरी मिल्क को जो है इतना तंग किया गया और सताया गया कि वो अपना बिजनेस वहाँ से ख़त्म करके वापस जाने का सोच रहे थे. बट देयर CEO सेड कि हम यहाँ पे जो है वी आर हेयर टू स्टे, वी हैव इन्वेस्टेड सो मच मनी इन दिस country. So let's talk to our consumers and tell them कि यार this cannot happen. If this has happened, we are very sorry for it and it would not happen again. So उन्होंने एक कैंपेन चलाई, उसमें उन्होंने बताया कि ये चॉकलेट किस तरह बनती है और हाइजीन का कितना ख्याल रखा जाता है और ये सारी सिलसिले. But people were not convinced. So जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी थी उसमें उन्होंने कहा कि लेट्स ब्रिंग समबडी हु हैज़ द एबिलिटी टू टर्न द क्या कहना चाहिए लोगों की जो है ना ओपिनियन उसको चेंज कर सके. somebody who can turn the opinions of the people. So they thought about a lot of people and then this finally came up with the idea that let's bring in Amitabh Bachchan because people literally take him as demigod. ठीक है. लोग जो हैं उसे पूजते हैं तो उसके आ जाने से लोगों की ओपिनियन चेंज हो जाएगी. और वही हुआ कि अमिताभ बच्चन को जैसे वो उस एड में लेके आए आफ्टर दैट मूवी दैट दे मेड और डॉक्यूमेंट्री दैट दे मेड टू शो पीपल हाउ दैट कैडबरी इज मेड. तो अमिताभ बच्चन जो था केम इन एज देयर स्पोक्स पर्सन और उसने फिर वो मीठा हो जाए वाली कैंपेन स्टार्ट की. एंड आपने देखा है कि ना सिर्फ इंडिया बल्कि वो पाकिस्तान में भी इतनी कन्विंसिंग कैंपेन के तौर पे इस्तेमाल हुई कि नाउ एवरीबडी एसोसिएट्स हिम और हरसेल्फ विद कैडबरी डेयरी मिल्क विच इज़ लाइक कि यार ओके मकसद ऐसी भी क्या बात है. हमारे यहाँ तो हज़ारों किस्म के डिफरेंट मीठे बनते हैं, वो तो सिर्फ एक चॉकलेट है वो जिसका टेस्ट वैसे का वैसे ही है, चाहे आप कैडबरी से ले लीजिए तो चाहे जुबली से ले लीजिए. थोड़ा सा हल्का सा फ्लेवर के एनहांसमेंट्स हैं थोड़ी बहुत जो कि होती हैं. बट पीपल आर बाइंग इट, किड्स आर क्रेजी अबाउट इट. सो यहाँ पे ये पॉजिटिव ब्रांड इमेज की बात है क्योंकि यहाँ तो वो ब्रांड इमेज बिल्कुल नेगेटिव में चला गया था और नाउ इट्स सो पॉजिटिव दैट इट इज नाउ वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स इन साउथ एशिया.
अब 4 स्टेप्स ऑफ ब्रांड बिल्डिंग क्या है कि जी सबसे नंबर 1 इज इंश्योर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ब्रांड विद कस्टमर्स एंड एन एसोसिएशन ऑफ द ब्रांड इन कस्टमर्स माइंड, कि लोग जो हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकें और उसको एसोसिएट कर सकें अपने साथ, ठीक है। फिर जो ब्रांड का जो मतलब है वो जो है totality of the brand meaning in the minds of consumers, establish the totality of brand meaning in the minds of consumer. मतलब लोगों को समझ आनी चाहिए कि what does this brand stands for. If it stands for fashion, it should look like a fashion brand, ठीक है। अगर आप देखें आजकल जो है लॉन सीजन है, now everybody is bringing in their own lawns. So every designer has got its own lawn label. पहले they had their boutiques जिसमें अपना they were clothes available for both male and female, but now they have got their own lawn collections and it's a big business. फिर elicit the proper customer response to the brand identification and meaning. And in this brand building, you want the customer to identify your brand and understand its meaning, ठीक है। जो रिस्पॉन्स है वो प्रॉपर किस तरह है कि वो उस ब्रांड को जब भी उसको ज़रूरत हो वो जाके ख़रीदे, उसको सोचना ना पड़े कि मैंने क्या चीज़ लेनी है या कौन सा ब्रांड लेना है। द ब्रांड जो है इट शुड बी सो मच फेमिलियर टू दैट कस्टमर कि he or she would just go into the market and grab it off the shelf or from the shop or from wherever it is available. उसको ढूंढना ना पड़े। अब जिस तरह आपको सर में दर्द होता है तो the first name that comes to mind is Panadol. एक ज़माना था कि लोग पैरासीटामोल की बात करते थे, नाउ दे टॉक अबाउट पैनाडोल। और जब पैरासीटामोल की बात हो रही होती थी तो क्या कहते थे कि जी शेर के निशान वाली, ठीक है। तो वो जो है आपको फौरन यू कैन इमीडिएटली आइडेंटिफाई योरसेल्फ। नज़ला ज़ुकाम होता है तो फौरन कि जी जौहर जोशांदा चाहिए। वही जोशांदा तो पहले भी अवेलेबल था एंड पीपल यूज्ड टू यूज इट, लेकिन अब जौहर जोशांदा क्यों? व्हाई नॉट द सेम ओल्ड जोशांदा दैट वाज अवेलेबल अर्लियर? सो ब्रांडिंग हैज बीन सच कि मकसद people believe that Jauhar Joshanda can give them a fast relief or a better relief, a quick relief than the regular Joshanda that was available earlier or is still available. Or this is the type of awareness or the brand building which creates loyalty, and this is what you want. You want loyalty from your customers. कि come rain or shine, they are ready to go ahead and buy that brand. Now, consumers ask these questions, or they are in their minds. They might not go and directly ask these questions, but they want to know few things about brands. Who are you, which is your brand identity, ठीक है? What are you, the brand meaning. What about you, what do I think or feel about you, brand response. And then what about you and me, what kind of association and how much of a connection would I like to have with you, brand relationship. So like brand identity, brand meaning, brand response, brand relationship. These are the type of questions that are in the mind of consumers, and you need to answer these questions as a brand manager. You should be able to answer these questions so that to have a positive contact with your consumer.
अब let's talk about this customer based brand equity pyramid. This pyramid is the key of building a brand, and this pyramid would go a long way throughout this course. It would come back to you again and again, so you need to know this, by heart probably, so that you may be able to answer these questions. And maybe you could, what you can do is try to fit the most favorite brand of yours into this brand equity pyramid. See how many questions can you answer in terms of your favorite brand, because you are the consumer. Can you answer these questions in terms of identity, meaning, response, and relationship? If you can do that, that means that you are a loyal customer. But many of you might be liking a brand, but they would not be able to answer these questions. Reason being, they do not have the capacity, or they do not have the right tools to get that brand knowledge. Because most of the brands that are introduced to us or we use are the ones that have been introduced to us by our parents or our siblings or our friends. And since we liked them, we never asked much questions. We just used them because we liked them. So, at the bottom is salience, which is the identity part, is who are you? Then we have the imagery, the communication that the brand has, and then its performance, meaning what are you? एक इमेज से, जो कम्युनिकेशन से हम बता रहे हैं कि जी ब्रांड क्या कर रहा है या क्या कर सकता है, और फिर हम उसको जब ले लेते हैं तो उसको देखते हैं कि वो परफॉर्मेंस क्या है, मतलब वो किस तरीके से हम जब भी उसे हम यूटिलाइज करते हैं तो वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, अच्छा है, बुरा है, ये सारी बातें. एंड देन द रिस्पॉन्स, फिर हमारी वो फीलिंग्स जो हैं वो इवोक करती हैं, और जब वो फीलिंग्स इवोक होती हैं अच्छी या बुरी, तो हम जजमेंटल हो जाते हैं, हम उसको जज करने लग जाते हैं. जब हम उसे जज कर लेते हैं तो फिर हम जो है वो रेजोनेट करता है, मकसद हमने दोबारा उसको ख़रीदना है, नहीं ख़रीदना है, ठीक है, हमने जो है उसके बारे में अच्छी बातें कहनी है, बुरी बातें कहनी है. सो ये एक चेन है जो कि चल रही है. सो वन नीड्स टू रिमेंबर कि कोई भी ब्रांड जो है वो हमेशा ये चाहता है कि जो रेजोनेंस है वो पॉजिटिव हो, जो आपकी जो जजमेंट है वो पॉजिटिव हो, और आपकी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लॉयल्टी बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हो, ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन हो, और ब्रांड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स हों. ठीक है. अब सेलियंस में क्या कहता है कि जी कैटेगरी आइडेंटिफिकेशन, नीड्स सेटिस्फाइड. ठीक है. फिर इमेजरी में यूजर प्रोफाइल, परचेज एंड यूजेज सिचुएशन, पर्सनालिटी एंड वैल्यूज, हिस्ट्री, हेरिटेज, एक्सपीरियंसेस. इमेज जो है वो किस तरह आ रहा है, कि किस तरह की प्रोफाइल्स यूज करें. मतलब अगर आप प्रोफाइल्स की बात करते हैं तो अगर आप देखें माउंटेन ड्यू का ऐड देख लीजिए. माउंटेन ड्यू के ऐड में कभी भी आपको कोई जो है बूढ़ा आदमी नजर नहीं आएगा, हमेशा जवान लोग नजर आएंगे जो कि एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है ना. तो वो परचेज एंड यूजेज सिचुएशन आपको बता रहे होते हैं, वो आपको जो है जो उसकी वैल्यूज हैं वो आ रही हैं. मकसद लाइक आपको जो है ये समझने की ज़रूरत है कि
जितना पॉजिटिव इमेज आप उसमें शो करेंगे लोग उतना ही पॉजिटिवली लेंगे, until unless something goes drastically wrong. अगर आपको याद हो तो कुछ अर्सा पहले एक ऐड आया था माउंटेन ड्यू का जिसमें वो कहता है कि चीता भी पीता है, कि एक आदमी जो है उसको माउंटेन ड्यू को पी के वो इतनी एनर्जी आ जाती है कि, और वो इतना डेस्परेट होता है उस माउंटेन ड्यू के लिए कि वो उस चीते के पीछे भागता है और वो उसको रोक लेता है और उसके मुंह में हाथ डाल के जब निकालता है तो कैन खाली होता है. सो लाइक जो है इवन चीता इज ड्रिंकिंग माउंटेन ड्यू. तो वो एक इमेज ऑफ एक्साइटमेंट, एक इमेज है ऑफ गोइंग टू द एक्सट्रीम, वो शो करते हैं, which is a good sign. It's not a bad sign at all. ठीक है. फिर जो है आप इमेज से आ गए, परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं. तो परफॉर्मेंस में क्या है कि जी उसकी प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, रिलायबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी है, सर्विसेबिलिटी है, ठीक है ना, उसका स्टाइल, डिज़ाइन, प्राइस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये उस परफॉर्मेंस में आ जाती हैं. अब हम सोनी का कैमरा, सोनी का टीवी, सोनी का डीवीडी प्लेयर, सोनी का वीसीआर, ये सारी चीज़ें हैं. तो हम सोनी जो है वो क्यों प्रेफर करते हैं बाकी ब्रांड्स के ऊपर या उनका कंप्यूटर ले लें, इसलिए कि वो जो परफॉर्मेंस है, जो रिलायबिलिटी है, जो सर्विसेबिलिटी है, इज नंबर 1. क्योंकि अमूमन चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो उसको क्या करें, हम फेंक दें उठा के? नहीं, वी वॉन्ट देम टू बी रिपेयर्ड. तो सोनी हैज बिकम a number 1 choice. Same is for Corolla. Same is for Gul Ahmad. In terms of clothing, मतलब जब भी आपको जो है कोई कपड़े खरीदने होते हैं अनस्टिच्ड, तो गुल अहमद जो है वो नंबर 1 चॉइस है, वेदर इट्स फॉर मेल्स और फीमेल, बिकॉज यू वुड नो और यू नो कि जो है जब भी आप वो कपड़ा लेते हैं वो उसका एक सर्टेन क्वालिटी है जो कि हम सबको पसंद है. वी वॉन्ट द बेस्ट फॉर आवर सेल्स एंड फॉर आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली. जब हमने तोहफा भी देना होता तब भी हम जो है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती. लॉरेंसपुर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक है ना, जो है मेबेलिन का मस्कारा फॉर गर्ल्स, मतलब कि जी वो इट स्टेज ऑन फॉर लॉन्ग एंड इट गिव्स यू वॉल्यूम्स टू योर आई लैशेज. ये नहीं है कि अदर प्रोडक्ट्स नहीं है, अदर प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो देयर, अदर ब्रांड्स आर ऑल्सो देयर विच आर इट्स कॉम्पिटिशन. सो वो जो परफॉर्मेंस है मैटर्स अ लॉट, ठीक है. फिर आप जो है फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, तो फीलिंग्स में क्या है कि जी वार्मथ, फन, एक्साइटमेंट, सिक्योरिटी, सोशल अप्रूवल, सेल्फ रिस्पेक्ट. जब आप वो चीज़ यूज़ करते हैं तो आपकी फीलिंग्स कैसे इवॉल्व करती हैं, कौन कौन सी फीलिंग्स इवॉल्व करती हैं, वो इट टेल्स यू अ लॉट अबाउट दैट ब्रांड. अब जो है अगर फैशन इंडस्ट्री में देखें तो लाइक हम जो है वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत सारी क्यूज़ लेते हैं. तो लाइक जब आप सूट की बात कर रहे होते हैं तो हम ह्यूगो बॉस की बात करते हैं, हम जॉर्जियो अरमानी की बात करते हैं, हम वर्साची की बात करते हैं. हम क्या है वो एक सोशल अप्रूवल दे रहा है हमें, एक सेल्फ रिस्पेक्ट दे रहा है. वी फील गुड अबाउट वेयरिंग दोज क्लोथ्स, ठीक है ना. जो सोशल अप्रूवल और सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो रही है, लाइक जो ये क्लोथिंग है, ये सिमिलरली आप जुनैद जमशेद या अमीर अदनान के जब कपड़े पहनते हैं तो यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, ठीक है ना. एक एक्साइटमेंट होती है, एक फन होता है. एंड देन ये जो एक्साइटमेंट और फन है, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू सम ऑफ द
occasions that we have, ठीक है। फिर जब हम जज करने पे आ जाते हैं तो हम उसकी क्वालिटी, उसकी क्रेडिबिलिटी, ठीक है ना, सुपीरियॉरिटी, हम उसकी बात करते हैं। सो लाइक कंसिडर कर रहे होते हैं, मतलब लाइक जब हम टोयोटा की बात करें तो हम रिलायबिलिटी की बात करेंगे, मतलब नो मैटर व्हाट आप जो है कहीं भी चले जाएं, मतलब टोयोटा वुड स्टे विद यू। वैसे करोला जो है एक ऐसी गाड़ी है जो कि जल्दी इट वुड नॉट ब्रेक डाउन अनटिल अनलेस समथिंग ड्रास्टिकली गोज रॉन्ग। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स जो हैं उसको इतना मैटर नहीं करते हैं, एंड इट टेक्स यू सेफली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देन हम रेजोनेंस की बात करते हैं, तो रेजोनेंस में हम लॉयल्टी, अटैचमेंट, कम्युनिटी, एंगेजमेंट, हम बात कर रहे हैं कि जी रिपीट परचेजेस हो रही हैं, हमें एक अटैचमेंट है, हमने जो है अगर मिठाई खानी है तो हमने निराला से ही खानी है, हमने कोला पीना है तो हमने कोक ही पीना है, अगर हमने जो है गाड़ी ख़रीदनी है तो हमने होंडा ही ख़रीदनी है, हमने अगर कहीं जा रहे हैं और किसी होटल में स्टे करना है तो वी आर लुकिंग फॉर हॉलीडे इन, ठीक है। तो एक अटैचमेंट बन जाती है, कम्युनिटी हो जाती है, दे नो यू, यू नो देम, और वो लॉयल्टी कार्ड्स बन जाते हैं, और जो है वो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, वो फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स मिलते हैं, तो आपकी इंगेजमेंट बढ़ जाती है। फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होने लग जाती है। तो जो है आप देखते हैं कि जी कम्युनिटी के लिए कितना काम कर रहा है आपका ब्रांड। जिस तरह एरियल जो है फॉर एवरी बैग दैट यू बाय एंड रिटर्न टू देम, दे गिव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर चिल्ड्रन हु आर डिसेबल्ड। ये उनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा है। बहुत सारे डिसेबल्ड बच्चे हैं जो कि जो है ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान टोबैको वाले जो हैं वो आपको फ्री में प्लांट्स देते हैं टू गो एंड प्लांट देम, ग्रो मोर ट्रीज, क्योंकि वो टोबैको प्लांट कर रहे हैं जिससे सॉइल ख़राब हो रही होती है। तो वो टू गिव बैक उन्होंने वो फ्री में आपको सैपलिंग्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। उनकी अपनी नर्सरी है, वहाँ से आप जाएं, जाके अपना पौधे ख़रीदें और लगाएं ताकि एनवायरनमेंट जो है वो बेहतर हो सके। सो आज के लेक्चर में हमने बात की रिकग्निशन के बारे में, रिकॉल के बारे में, नोड्स के बारे में, कंसिडरेशन सेट ब्रांड्स के क्या होते हैं, कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी पिरामिड के बारे में कि उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और क्या क्वेश्चंस को वो आंसर करने की कोशिश करें, जो वो क्वेश्चंस एक कंज्यूमर के माइंड में उठते हैं और उसको वो किस तरीके से मैनेज किया जाता है। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।